aggregation, composition, and also we have talked about and implemented the array list and its different function. And after that, we implemented how to take user input using the scanner class. If you have any question related to the previous lecture, then you can ask. Roll number 109. Is my voice audible to you? Yes, sir. Okay. So if anyone have any question regarding previous lecture, any concept misunderstanding, then you can ask. Otherwise, I will ask by calling the roll number, and then after that we will move towards today's lecture, which is inheritance. Okay. Roll number 79. What is mean by association? Roll number 112. Roll number 154. Roll number 106. This roll number calling will be count into the class participation, and class participation has some marks. Roll number 106. Yes, sir. What is mean by association? सर नहीं इस टाइम नहीं पता है। नहीं पता. What is array list? 109. सर अरे लिस्ट एक ऐसी अरे लिस्ट होती है, एक ऐसी अरे होती है जिसके पीछे अरे होती है और ये डायनामिकली होती है। इसके अंदर एलिमेंट्स हम मतलब ऐड करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एलिमेंट रिमूव करते हैं तो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। किसी भी और what टाइम पे is एलिमेंट इसमें से रिमूव कर सकते हैं या ऐड association? कर। एसोसिएशन होती है दो सेपरेट क्लासेस के बीच में कनेक्शन। दो क्लासेस के बीच में कनेक्ट. तो how will we identify that there will be association between the classes? सर उनके ऑब्जेक्ट्स के जरिए से, यानी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो फिर इस तरह से एक क्लास दूसरी क्लास के साथ कनेक्ट हो जाती है। So actually whenever you come across to develop a software, you come across with the requirements of the project. Okay, so from the requirements, a textual form data, we analyze that here these classes will be formed and there will be this type of relationship, there will be that type of relationship between these classes. So to identify that there is an association relationship, we characterize and read the statements as if there is a has a type of relationship. I taught you in the previous class that if there is a has a type of relationship, then we say that there is an association between a classes. For example, a car has an engine. Engine is a separate class and car is a separate class. Engine has its own properties like ID, its model, its brand name. Okay, and in car has ID, car has its name, car has its color, car has its model number, car has its engine details. Engine details actually is the object of the engine class. Okay, so a car has engine, car has engine, so has a relationship indicates that there will be an association between these two classes. Okay, if the class is being used as an object or an attribute in the other class, then we say that there is association between the classes. ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी. एसोसिएशन दो टाइप्स की है, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता था वो सुन लें. एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन. व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन? बोथ आर द एसोसिएशंस. ठीक है, सेम टाइप से वैसे ही इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन डिफरेंस इज दैट कि अगर तो वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है तो हम उसे कहेंगे कि ये एसोसिएशन हो रही है. बट इफ़ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, स्ट्रॉन्ग टाइप रिलेशनशिप मीन्स अगर हम एक को डिस्ट्रॉय कर दें, लाइक इंजन की क्लास को ख़त्म कर दें, तो क्लास की एग्जिस्टेंस ना रहे, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंपोजिशन हो गया.
ठीक हो गया। अदरवाइज अगर वीक टाइप ऑफ रिलेशनशिप मतलब चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करती है तो हम इसे कहते हैं कि ये एग्रीगेशन है। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास एसोसिएशन। एसोसिएशन बताने का मकसद ये था, आज हम इनहेरिटेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। आपने थ्योरी की क्लास में पढ़ लिया होगा व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस? सर अभी नहीं पढ़ा हमने। नहीं, डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी? मेरा ख्याल से नो पहली स्लाइड सर। में या दूसरी स्लाइड में डेफिनेशन तो लाजमी तीसरी है। सर सर तीसरी स्लाइड में है, सर ने अभी ये स्लाइड पढ़ाई नहीं। सर भी ये स्टार्ट करने वाले हैं बस। अच्छा, इनहेरिटेंस। किसी स्टूडेंट को आइडिया नहीं इनहेरिटेंस का? चलें ठीक है, मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। ऐसा करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट क्लास और एक क्लास है टीचर क्लास। अ स्टूडेंट क्लास हैज़ इट्स नेम, इट्स ईमेल, its phone number, its CNIC, and its roll number, and its section and its course। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक टीचर की क्लास है। टीचर क्लास हैज़ इट्स नेम, टीचर हैज़ इट्स ईमेल, फ़ोन नंबर, CNIC, एंड ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। तो आप मुझे बताएंगे इन स्टूडेंट की क्लास और टीचर की क्लास में कॉमन एट्रीब्यूट्स कौन से थे? नेम आईडी से। नेम, आईडी और ईमेल और फ़ोन नंबर। यस सर। ठीक है। ये सारे जो थे ये इन दो क्लासेस में कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की क्लास थी, एम्प्लॉय में भी मेरे पास आ जाता है नेम, सैलरी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, एंड जो डिस्टिंग्विश करेंगे वो उसकी क्या आगे पोस्ट आ जाएगी, उसकी सैलरी आ जाएगी। ये दो एट्रीब्यूट डिफरेंट आ जाएंगे। तो मतलब ये जो तीन क्लासेस थी इनमें कोई 4-5 एट्रीब्यूट्स कॉमन थे और ये हमने तीनों में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन तीन एट्रीब्यूट्स को उठाएंगे, ये 3-4 जितने भी 5 एट्रीब्यूट्स हैं, एक सेपरेट क्लास बनाएंगे। ठीक है। वहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को रख देंगे और जो चाइल्ड क्लासेस जो बन गई हैं हमारी, ये जो स्टूडेंट की है, टीचर की, ये एक्सटेंड करेंगी उस क्लास को। ठीक है। यानी कि वो एट्रीब्यूट्स जो पेरेंट क्लास में मैंने डिफाइन कर दी उनको ये इनहेरिट करेंगे। यानी कि एक दफ़ा हमने डिफाइन कर लिया, जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो उनको यूटिलाइज कर रही हैं। ठीक है। बजाय ये कि हम हर क्लास में सेपरेट सेपरेट उन एट्रीब्यूट्स को लिखें, कॉमन एट्रीब्यूट्स को, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स कंबाइन करके हम पेरेंट एक क्लास में रख देते हैं, उसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं। और जो क्लासेस उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करती हैं उन्हें हम कहते हैं चाइल्ड क्लासेस। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड this सर relationship is called स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। inheritance relationship। this is called सर वैसे inheritance relationship। इसमें एसोसिएशन हो रही है ना? नहीं, नहीं हो इसमें रही सर। हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में नहीं बनाया। ठीक है। इट इज अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हमने जो क्लास है कॉमन बनाई है वो पर्सन की क्लास है। पर्सन हैज नेम, पर्सन हैज ईमेल, पर्सन हैज CNIC, पर्सन हैज डेट ऑफ बर्थ। नाउ स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, मैनेजर इज अ पर्सन। जो जो क्लास उस पर्सन क्लास से इनहेरिट कर रही है उसका और पेरेंट क्लास के दरमियान में जो रिलेशन है वो इज अ रिलेशनशिप हम रीड कर रहे हैं। ठीक है। सो एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप है, उसमें हम दो क्लासेस बनाते हैं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बनाते हैं और हम कहते हैं दिस क्लास हैज़ दिस क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है। बट हेयर दिस सर इज आर एग्रीगेशन क्या है? रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेशन? एग्रीगेशन में क्या करते हैं हम? सर ये एग्रीगेशन में भी वैसे तो ये लिंक ही होती हैं क्लासेस आपस में, लेकिन ये वीक हाँ, रिलेशनशिप होता है सर। क्लास वीक रिलेशनशिप होता है लेकिन वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ये एसोसिएशन है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में हम यूज़ कर रहे हैं, वो एसोसिएशन है। यहाँ पे हम एक अबव क्लास की प्रॉपर्टीज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे नीचे वाली क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट नहीं हम बना रहे, उसके एट्रीब्यूट्स को तुम एक्सेस कर रहे हो चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है। तो ओके। इससे हम कहते हैं इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ठीक है। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो कुछ आइडियाज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। सर एसोसिएशन तभी होगी ना जब कोई हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का दूसरी क्लास में। हाँ जी। ठीक है सर।
ठीक है, जैसे मैंने बताया कार हैज़ इंजन, अब कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। यहाँ तो इंजन की एक स्ट्रिंग ले लो, फिर तो इंजन की मतलब क्लास ही नहीं है। अगर इंजन की एक क्लास बनाई है तो कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे बुक हैज़ ऑथर आपने असाइनमेंट की थी, पहले ऑथर की डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, जस्ट आप नेम लिख देते थे। लेकिन जब आपने ऑथर की सेपरेट क्लास बना ली और ऑथर के कुछ एट्रीब्यूट्स थे, तो बुक के अंदर आपने फिर ऑथर का ऑब्जेक्ट बना लिया था। ठीक है, तो वो एसोसिएशन हो जाती है। ये हमारी लैब 06 है, 05 है सेक्शन ए, लैब 05 सेक्शन ए। इसे हम मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ और डोंट क्रिएट स्क्रीन वीडियो। शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है आपके साथ, वेट अ मिनट ना। रोल नंबर 121 स्क्रीन शेयर है आपके साथ? यस सर। ठीक है, अगर आपको दरमियान में मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, ठीक है, तो आपने मुझे उसी टाइम बता देना। क्या, सो वी विल right click on the source folder and create a class. Let's say we create a student class. Okay, now let's right click and create another class, that is a person class, and also right click on the new, create a new class, that is our test or main class. Okay, so coming towards here, we assume that public string name, public string email, public string we can write CNIC, phone number, many attributes are there, but let's move towards shorten the number of attributes. String roll number, public string section. ठीक है, एट्रीब्यूट्स बन गए। एक हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिख लेते हैं, ओवरराइड कर देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम सारे एट्रीब्यूट्स पास करते हैं। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग रोल नंबर, स्ट्रिंग सर थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, विंडो कंसोल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसे जूम कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, एंड दिस डॉट सेक्शन इज इक्वल टू सेक्शन। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। सिमिलरली हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू क्लास स्टूडेंट, एक टीचर की क्लास बनाते हैं। टीचर की क्लास बनाई है हमने? नहीं बनाई। एक टीचर की क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने सर सारा आपने कोड कहा था कि ये जो सेम फील्ड्स होंगे वो हम पर्सन वाली क्लास में बनाएंगे। अभी, हाँ जी ऐसे ही है, हम वहीं पे बनाएंगे। ठीक
है, पहले हम जनरल कोड लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, उसके बाद हम इनहेरिटेंस ओके इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर, इट्स डेजिग्नेशन एंड इट्स सैलरी। और यहाँ पे हम लिखते हैं डेजिग्नेशन कॉमा इंट सैलरी, ठीक है। दिस डॉट designation is equal to designation and this dot salary is equal to salary। ठीक है, तो क्या इशू आ रहा है यहाँ पे? string name, string email, string designation and int salary। सर स्टूडेंट की जगह टीचर आएगा। ओह ठीक है, टीचर ठीक हो गया। 1 मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, मैं आता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। सो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट क्लासेस बनाई हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाए हैं और उनके कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं। अगर हम टेस्ट क्लास में जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो पब्लिक मेन मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट std1 इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। एक पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो
इसमें हम बाद में बात करते हैं पैरामीटर लेस वाले पे। लेट्स क्रिएट parameterize constructor and initialize the values. std2 is equal to, and here we will pass name, email, and roll number and section. These are the 4 attributes. Okay, also we have a teacher, ठीक है, अहमद, designation assistant professor, और सैलरी इज 100000। ठीक है, और इस तरह से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके T1 डॉट नेम, T1 डॉट ID, T1 डॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें इनहेरिटेंस की, ये चीज़ें जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ वी सी दैट स्टूडेंट एंड टीचर हैज़ सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, both are persons and they have some common person type attributes that are name and email. So we will cut these attributes from here, move this attribute from here again, and move it to the person class. Okay, we will add a constructor public person, okay, and a parameterized constructor of this class, string name and string email, and this dot name is equal to name, roll number 112। अपना माइक म्यूट करें। डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट क्लास बन गई, और हमने क्या किया, टीचर क्लास में आके लिख दिया एक्सटेंड्स पर्सन। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट में आके लिखा एंड्स पर्सन। सो these attributes from here, these attributes from here. Now let's go to here। ठीक है, we create the object of the student class and the teacher सर class। कंस्ट्रक्टर को एडिट नहीं करेंगे? अभी हम करने लगे हैं ना, तो हमने यहाँ से स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको सारे पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, स्टूडेंट क्लास में हम जाते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसमें नेम और ईमेल जो है हम पेरेंट क्लास के थ्रू एक्सेस कराएंगे। तो पेरेंट का क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, सुपर, और इसके अंदर वो पैरामीटर्स पास कर देंगे नेम एंड ईमेल। तो ये जो नेम और ईमेल हमारे पास आएंगे वो पेरेंट क्लास के पास जाएंगे और वहाँ से इनिशियलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास दिस डॉट रोल नंबर एंड दिस डॉट सेक्शन। सिमिलरली हम टीचर में जाएंगे और यहाँ पे भी हम लिख देंगे सुपर नेम कोमा ईमेल। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स हमने वहाँ पे पास कर दिए, और दिस डॉट डेजिग्नेशन, दिस डॉट सैलरी। अब वो दो एट्रीब्यूट्स हैं, वो टीचर कैन एक्सेस दोज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बिकॉज टीचर एक्सटेंड्स पर्सन, दोज एट्रीब्यूट्स आर पार्ट ऑफ द टीचर क्लास एंड दोज एट्रीब्यूट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ठीक है, लेकिन हम बजाय कि इसी क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट लिखें दोनों क्लास में सेपरेटली, हमने उसे जस्ट पेरेंट क्लास में एक जगह पे लिख लिया, और वहाँ से ही वो एक्सेसिबल रहेंगे और वहीं से वो सेट हो जाएंगे। सर वहाँ से स्टूडेंट क्लास टीचर क्लास के एक्सेस कर सकता है? नहीं, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में कोई लिंक नहीं है, स्टूडेंट का पर्सन के साथ है, टीचर का पर्सन के साथ लिंक है। ठीक है, तो
यहाँ पे हम आते हैं, अभी भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स अगर हम देखें तो std2 डॉट, अगर हम नेम लिखेंगे तो नेम एक्सेसिबल है, नेम तो स्टूडेंट में डिफाइंड नहीं है, नेम तो उसकी पेरेंट क्लास में डिफाइंड है। ठीक है, तो std2 डॉट सर आपकी स्क्रीन बहुत स्टक हो रही है। स्टक हो रही है। जो आप टाइप करते हैं काफी देर बाद जो है वो स्क्रीन पर शो होता है। मैं शायद सर जल्दी थोड़ा गंदे टाइप कर लो देता हूँ। ऐसे। ठीक है, हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन std2 डॉट नेम clearly t1 डॉट नेम। ठीक है, तो इनके नेम्स जो हैं वहाँ पर्सन क्लास में जाके डिफाइन हो रहे हैं और वहीं पे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम इनके स्टूडेंट और टीचर के ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्हें एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, देखें अली और अहमद आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट std1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ये क्या कर रहा है, इसका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और जब हम न्यू की कमांड लिखते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है, जो भी कंस्ट्रक्टर मैप करता है, ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया, ये हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है, हमने वैसे ही इसे ओवरराइड कर दिया। तो जब भी कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट कर रही होती है तो सबसे पहले स्टूडेंट से पहले पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज चाइल्ड क्लास एंड sorry, here we can write it is parent। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसने कॉल होना है, इसके अंदर जो भी है वो चीज़ एग्जीक्यूट होनी है, लेकिन पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ये हमने गौर करना है। हम यहाँ टेस्ट में आते हैं, ये वाली स्टेटमेंट हमारी चलनी है। ठीक है, कुछ प्रिंट हम यहाँ पे करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हमने, इस कंस्ट्रक्टर में वो गया, यहाँ पे जाके इसने पहले चाइल्ड प्रिंट नहीं किया, इसने पहले पर्सन में गया और पर्सन में जाके इस पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करके पहले ये प्रिंट किया, फिर स्टूडेंट का ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर। ठीक हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है पेरेंट क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, जिसमें ये नेम में नल रखवा देगा और ईमेल में भी नल रखवा देगा। ठीक है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, बाद में दूसरा कंस्ट्रक्टर। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुपर ऐसे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो ये इंडिकेट करेगा कि पहले सुपर क्लास का हम कंस्ट्रक्टर कॉल करें। बाय डिफ़ॉल्ट भी पेरेंट क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाना, अगर हम खुद से स्पेसिफाई करना चाहें तो हम खुद भी ये चीज़ लिख सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक हो गया। सेकेंडली, इस स्टेटमेंट को आप इस लाइन के बाद नहीं लिख सकते। ठीक है, जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है मैंने आपको बताया सबसे पहले कॉल होता है, या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा या आपने खुद मेंशन करना है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, कि नेम ईमेल वाला कॉल करना है आपने, या आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है वट, तो वो आपने पहले लिख देना। ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी जी। तो ये पैरामीटर्स के बगैर जब करते हैं तो फिर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है सुपर के साथ। हाँ, अगर आप पैरामीटर के बगैर करेंगे तो वो पर्सन के अंदर आएगा, तो इसका एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ठीक है। ठीक है, जिसमें ये नेम और ईमेल में बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू रखवाता होता है वही रखवा देगा। आप खुद स्पेसिफाई करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, तो वो तो आपको पता है, हम यहाँ पे खुद से भी कर सकते हैं। ईमेल में हम इज इक्वल टू लिख दें कि नो ईमेल। ठीक है, सर एक दफा ये डिफ़ॉल्ट ओवरराइड वैल्यू का कंसेप्ट जरा बता दें थोड़ा सा। ओवरराइड। ये सर आपने कहा था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके अंदर जो इनिशियली वैल्यूज असाइन होती हैं हर चीज को वो नल होती है,
तो जब हाँ हमने ये सुपर के बगैर ये जो इस पर नजर आ रहा है पब्लिक स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर, अगर हम यहाँ हाँ अंदर से सुपर की स्टेटमेंट हटा दें तो ये हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है ना। जब हाँ, हम ये अंदर डिफॉल्ट उसके कंस्ट्रक्टर है। अगर हम जब हम तब अभी आप कह रहे थे पहले कि आपने इसको ओवरराइड कर दिया अभी इस तरह लिखने के बाद भी, तो इसमें ओवरराइड क्या हुआ? एक्चुअली अगर हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है ना किसी क्लास में लिखा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ एक कंस्ट्रक्टर भरा होता। मैं यहाँ से सारे कंस्ट्रक्टर्स को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये एरर जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि हर क्लास के साथ एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसी जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इस तरह की स्टेटमेंट थी हमने वही लिख दिया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख देंगे फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिख दिया, ठीक हो गया। मतलब कि सर अगर हम डिफॉल्ट ये देख, कंस्ट्रक्टर ना लिखें तो फिर वो हम्म कॉल नहीं होगा, फिर सिर्फ पैरामीटराइज के जरिए हम वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद रहेगा, ठीक है। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर ऐसा लिख दिया जो कि पैरामीटर वाला, फिर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर पे एरर जनरेट कर रहा है, जब कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं था तब उसने वो एक्सेप्ट कर रहा था। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे ओवरराइड कर लिया ताकि ये कंस्ट्रक्टर भी एक्सेसिबल रहे, ओके ठीक सर। हो गया। और इसमें हम वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से फिर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, जब भी किसी क्लास को कॉल करेगा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मैंने, अगर वो क्लास इसी क्लास से एक्सटेंड कर रही है तो ये क्या करेगा, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। वो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट चाइल्ड लिखा, वहाँ पेरेंट लिखा, तो पहले पेरेंट प्रिंट हुआ फिर चाइल्ड प्रिंट हुआ। इसका मतलब पहले पेरेंट कॉल होता है फिर चाइल्ड कॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो, वैसे भी अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप सुपर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब है पेरेंट को कॉल किया जाए, ठीक है। और ये जो सुपर की स्टेटमेंट जो हमने लिखी है कंस्ट्रक्टर में, ये एड फर्स्ट लिखनी है हमने, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे नहीं आ सकती, वो ऐड जनरेट करेगा। ये कंस्ट्रक्टर सर अगर पेरेंट पहले कॉल होगा फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सर अगर हमने एक से ज्यादा पेरेंट वो बनाई हुई है क्लास की, सिर्फ एक ही बनाते हैं मतलब? एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं बन सकते, इसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मोर देन वन पेरेंट्स ऑफ अ क्लास। ये जावा में जो है अलो नहीं है, सी शार्प में भी नहीं ठीक है। अलो, जावा में भी नहीं अलो। यानी कि हम ये नहीं लिख सकते क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन कोमा अनदर क्लास कोमा अनदर क्लास, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट और टीचर ने पर्सन को एक्सटेंड किया हुआ, ठीक है। तो दो से ज़्यादा क्लासेस अगर किसी एक क्लास को एक्सटेंड करें, इसे हम बोलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? हेरारिकल इनहेरिटेंस। इनहेरिट। अगर एक चाइल्ड क्लास है और उसका एक पेरेंट है, यानी कि एक पेरेंट का एक चाइल्ड है या एक चाइल्ड की एक पेरेंट है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि क्लास डी एक्सटेंड्स क्लास सी एंड क्लास सी एक्सटेंड्स क्लास बी एंड क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलो है यहाँ पे जावा में, मल्टीपल इनहेरिटेंस बस अलो नहीं है। मल्टी लेवल भी चलती है, सिंगल भी चलती है, हायरार्किकल भी चलती है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं चलती। सर हेरारिकल और मल्टीपल में क्या फर्क है, जरा एक दफा बता दें। हायरार्किकल का मतलब ये है कि मल्टीपल में और हायरार्किकल में, हायरार्किकल ये है कि ये देखें आप, हमारे पास दो चाइल्ड क्लासेस हैं और वो एक पेरेंट को एक्सटेंड कर रही हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस किसी एक पेरेंट को एक्सटेंड करें। लेकिन और अगर सर एक जब चाइल्ड क्लास है और मल्टीपल पेरेंट्स हैं, जो कि अलो भी नहीं है, इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ, मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, दूसरी ओके क्लासेस में भी एक्सक्यूज एक्सप्लेन मी कर रहा सर। हूँ। जी सर जो पेरेंट क्लास होती है इसको हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं, मतलब यूज़र के लिए तो सिर्फ ये हम पेरेंट क्लास को यूज़ करेंगे, तो पेरेंट इसको इंटरफेस भी बोल सकते हैं। नहीं, इंटरफेसेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। उन पे भी हम बात करेंगे। जावा इंटरफेसेस अलग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अलग होती हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाते, लेकिन वो दोनों के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही काम कर रही होती है, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट सेपरेट है। अच्छा,
यहाँ पे आते हैं हम। ओके सर। ये अगर आप देखें तो क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास है। This is a parent class A, and class B is a child class. Arrow is always from child class towards the parent class. ठीक है, एरो हमेशा चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, और एरो का हेड इसी तरह का होगा जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। ठीक हो गया। अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो उससे म्यूट कर ले। सर ये सिंगल इनहेरिटेंस, ये आगे सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। इसके साथ हम चलें तो दो क्लासेस हैं और क्लास सी है। तो एरो हेड से हमें इंडिकेट हो गया क्लास सी क्लास ए को भी एक्सटेंड करी, क्लास बी को भी। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में लो नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर हम चलते हैं तो हम देखें ये क्लास ए है, इसके नीचे क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास सी एक्सटेंड करी है क्लास बी को और क्लास बी एक्सटेंड करी है क्लास ए को, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाती है। ठीक है, ये हम लेफ्ट तरफ आए तो ये क्लास ए क्लास बी और क्लास सी है। ये तीनों एक्सटेंड करिए क्लास बी को, जैसे हमारी स्टूडेंट और टीचर की क्लास एक्सटेंड करिए किसी क्लास पर्सन को, तो हम कहते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा, सर एरो हेड हमेशा पेरेंट क्लास की तरफ होगा। हाँ जी, एरो हेड पेरेंट क्लास की तरफ होगा। डायग्राम से हमें पता चल जाता है, ये यूएमएल डायग्राम्स होती हैं। अगर किसी को डायग्राम्स दिखाए जाएंगे और उसे पता हो कि ये इन एरोस का क्या, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिवर्सली आइडेंटिफाइबल है। किस तरह का, मतलब ये है कि ये पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास, और इनमें इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, आप देखें हमने एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है, एट्रीब्यूट सेपरेट किए और एक क्लास दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करिए। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट क्लास जो है, एक वेरिएबल आ जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ऐसा होगा तो नहीं, कुछ सिनेरियो में आ जाता है कि लोकल वेरिएबल ही आपने ले लिया जिसका नेम था सेम लाइक द वेरिएबल नेम इन द पेरेंट क्लास। लाइक वहाँ पे एक नेम पड़ा है, यहाँ पे नेम पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से, मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम, तो ये कौन सा नेम प्रिंट करेगा, चाइल्ड का नेम प्रिंट करेगा या पेरेंट का? ये चाइल्ड का एक एट्रीब्यूट और पेरेंट का एट्रीब्यूट दोनों का सेम जो है स्पेलिंग या वेरिएबल का नहीं, ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये पेरेंट का एट्रीब्यूट एक्सेस करके लेके आए तो हम इसे लिख देंगे सुपर डॉट नेम। ठीक है, जैसे हम सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं, इसी तरह सुपर डॉट नेम। सुपर डॉट वेरिएबल नेम तब हम यूज़ करते हैं जब सेम नेम के साथ हमारे पास जो है वो वेरिएबल आ जाए। इसी तरह सेम नेम के साथ हमारे पास फंक्शन आ गया। मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया हुआ था पेरेंट क्लास में, उसी नेम से मैंने फंक्शन बना दिया चाइल्ड क्लास के अंदर। अब चाइल्ड क्लास में जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो चाइल्ड क्लास के ही फंक्शन को कॉल करेगा। लेकिन अगर मैं पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो तब हमें सुपर डॉट करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अभी सर इसकी इनके आउटपुट साथ हम चेक ऑब्जेक्ट करते के नेम्स नहीं स्पेसिफाई करेंगे। नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमने रख दिया, हमने यहीं पे इसको जो है सेट कर दिया एज पर्सन। इसका तो वहाँ पे जाएगा नेम, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो नेम ही है। नेम इज़ इक्वल टू, इसका हम कह देता हूँ मैं, ये स्टूडेंट क्लास का नेम है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ टेस्ट क्लास में,
स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और std1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इसने प्रिंट किया स्टूडेंट एंड नो नेम। ये किस तरह से कॉल हुआ, जैसे हमने ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, यहाँ पे हम गए, यहाँ से एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पर्सन में हम गए, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसमें हमने नेम में नो नेम रखा हुआ, जो स्टूडेंट क्लास के साथ ये जो नेम एसोसिएटेड था, ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे नेम डिक्लेयर किया हुआ, ये वाली नेम फील्ड, इसमें हमने स्टूडेंट वैसे रखा हुआ। अगर हम जस्ट नेम लिखेंगे तो वो इस क्लास में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको उसने प्रिंट किया, और जो हमने कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट में नो नेम डिक्लेयर हुआ था वो सुपर डॉट नेम से हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। ओके सर। इसको मैं रिपीट कमेंट कीजिए। कर रिपीट कर देते हैं। ये हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर में गए, यहाँ पे इसने जो है इसके जो एट्रीब्यूट्स थी इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी रोल नंबर सेक्शन की सेट करनी थी कर दी। उसके बाद हम गए टेस्ट क्लास में, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स थे पर्सन के अंदर, वहाँ पे इसने नेम में नो नेम रख दिया और ईमेल में नो ईमेल रख दिया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें सेट हो रही थी। इसको तो हम कमेंट करें, ठीक हो गया। तो अब वो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना, उस पूरे ऑब्जेक्ट में जो नेम का एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो क्या है, उसमें वैल्यू भरी है नो नेम। लेकिन ये जो हमने लोकल वेरिएबल एक बनाया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्सेसिबल, इसमें स्टूडेंट भरा हुआ, तो पहले ये प्रिंट हुआ स्टूडेंट, जब हमने सुपर डॉट नेम किया तो फिर पेरेंट क्लास में जो एट्रीब्यूट भरा था वो एक्सेस हुआ, यस सर। ठीक है। सर वो पेरेंट क्लास का पेरेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ? पेरेंट क्लास का सर वो जो लाइन आपने लिखी थी जिसमें पेरेंट प्रिंट कर रहे थे हम, वो क्यों नहीं वो प्रिंट हुआ हमने जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? वो पहले प्रिंट होके ना स्क्रीन टर्मिनेट हो गई थी, डबल प्रिंट हुआ था। मतलब सर ये समझ नहीं आया कि पहले डबल वो प्रिंट। नहीं, पहले वो आउटपुट प्रिंट हुई थी, फिर स्क्रीन ब्लिंक करके ये वाली आउटपुट प्रिंट हुई थी। मैं दोबारा रन कर देता हूँ, ये लो। यहाँ पे हम आते हैं कंट्रोल एस, पहले पेरेंट के साथ स्टूडेंट नेम आया था, ठीक है, ठीक है सर, कंस्ट्रक्टर ठीक। कॉल हुआ था उसके बाद। अच्छा, अच्छा जी, तो हम यहाँ पे थे सुपर पे। सिमिलरली मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो के नेम से, और सर यहाँ ये पे लेकर क्वेश्चन था सर, ये जब हमने वो जो अभी मैंने पूछा था कि पेरेंट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, आपने कहा कि पेरेंट प्रिंट हुआ था लेकिन वो स्क्रीन, सर वो स्क्रीन वैनिश हो गई थी या स्पेस कम होने की वजह से वो ऊपर चला गया? ये स्पेस कम होने की वजह से मेरा ख्याल ऊपर चला गया था। ये देखें, ये पेरेंट है, ठीक है सर, ठीक 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 है। ठीक। ये मैंने यहाँ से स्क्रॉल, आपको नज़र आ रहा है, यस सर, यस सर। ये हमने जूम किया था ना तो मैंने कंसोल विंडो को छोटा कर दिया था, ठीक है। पब्लिक वॉइड शो, और सेम मैं फंक्शन बना देता हूँ पेरेंट क्लास के अंदर सेम नेम के साथ, पब्लिक वॉइड शो एंड दिस इज पेरेंट, ठीक है। और मैं अब स्टूडेंट क्लास में हूँ, मेरे पास एक मेथड था डिस्प्ले का, यहाँ पे आके मैंने जब लिखा शो, तो ये इस क्लास का जो पब्लिक मेथड है वो शो उसे कॉल करेगा। मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको कॉल किया जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर डॉट शो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सुपर डॉट शो पेरेंट क्लास में जो शो का मेथड है उसे कॉल करेगा,
ठीक है, तो पहले हमारे पास प्रिंट हुआ चाइल्ड और उसके बाद प्रिंट हुआ पेरेंट। समझ आ गया? ये चाइल्ड सर था और जी सर ये जो सुपर डॉट शो है ये पेरेंट क्लास के लिए और ये जो हाँ सिंपल जी, शो है ये चाइल्ड क्लास ये के लिए। इसी क्लास का जो शो का मेथड है ना, अगर सेम नेम के साथ, जैसे हमारे पास वेरिएबल था सेम नेम के साथ इसी क्लास में भी और टेस्ट क्लास पेरेंट क्लास के अंदर भी, तो सिंपल जब हम लिखेंगे तो वो उसी क्लास को टारगेट करेगा। जब हम पेरेंट क्लास को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं फिर हमने सुपर डॉट फंक्शन डाटा मेंबर नेम लिख देना। ठीक हो गया, तो उसे कॉल कर लेगा। यस। अच्छा, इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग तो मैंने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है उसी तरह मेथड ओवरलोडिंग थे। इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कि देखिए सिग्नेचर दोनों के सेम थे, सिग्नेचर दोनों के सेम है, सेम। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दोनों की डिफरेंट है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग है। अब इसे हम, ये जो सुपर वाला मेथड है, अगर हमने चाइल्ड में रह के पेरेंट का मेथड एक्सेस करवाना है तब हमने सुपर लिखना है। लेकिन अगर हम किसी और क्लास में बैठे हैं वहाँ से हमने उसके पेरेंट का एक्सेस करवाना है तब ये सुपर वाली नहीं फंक्शनैलिटी चलती। ठीक है, अगर आप चाइल्ड क्लास में, जैसे मैं स्टूडेंट में हूँ या मैं टीचर में हूँ, वहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया जो पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा है और पेरेंट वाला एक्सेस करना है, तो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर लिख दूंगा सुपर डॉट शो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं मैं कर सकता कि std1 डॉट सुपर डॉट शो std1 डॉट शो तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन पेरेंट वाला कॉल करवाना है तो उसके लिए फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़नी है पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग के साथ ही लिंक करती है पॉलीमॉर्फिज्म, वो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करनी है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे मेन मेथड में हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के हम डॉट शो लिखेंगे, लेकिन सेम पॉलीमॉर्फ का मतलब होता है मोर देन वन बिहेवियर शो करना, कि सेम फंक्शन कॉल के लिए डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट आउटपुट रिजल्ट्स आ रही हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में आपने बस ये इनहेरिटेंस पे अपनी ग्रिप करनी है, मैं एक टास्क अपलोड करूँगा, वो आपने प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस के लिए, और वो असाइनमेंट होगी, ग्रेडेड होगी वो। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपने यूज़ करना है, मैं कोशिश करूँगा एसोसिएशन की भी एग्जांपल बीच में डालूँ उसके, ताकि आपकी उस पर भी प्रैक्टिस सेट हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे। एक और चीज़ रह गई है, आज जो हमने कवर किया है जी। सर आपने अभी ये जो बात बताई ना कि हम अगर हमने पेरेंट क्लास का कोई मेथड यूज करना है तो हम सुपर लगाएंगे, लेकिन टेस्ट में हम वो यूज नहीं कर सकते मेन जी क्लास में, वो क्या, वो समझ नहीं आई, प्लीज रिपीट करें। मैंने बताया कि ये हमारी पेरेंट क्लास है, मैं चाइल्ड क्लास में टीचर में, और मैंने स्टूडेंट क्लास में, और मेरा स्टूडेंट क्लास का मेथड और पेरेंट क्लास का मेथड सेम नेम के साथ है। अगर मैं कॉल करता हूँ तो शो के साथ होता है, अगर हम उसे जो है पेरेंट को कॉल करना चाहते हैं हम सुपर डॉट शो लिखते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा std1 डॉट शो, तो ये तो स्टूडेंट क्लास में तो शो का मेथड है उसे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते std1 डॉट सुपर डॉट शो। ठीक है, ये जो सुपर का कीवर्ड है ये पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के दरमियान में ही यूज़ होता है। ठीक है, एक चीज़ और, कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तब सुपर ऊपर लिखना लाजमी है, एट द टॉप ऑफ द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर कोडिंग, और यहाँ पे हम जहाँ मर्जी सुपर डॉट शो कर सकते हैं। तो हम, अगर हमने पेरेंट का वो शो करवाना है तो हमें एक सेपरेट मेथड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये सुपर डॉट शो यहाँ पे लिखेंगे, तो जब मैं डिस्प्ले का मेथड कॉल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पेरेंट का कॉल करके ला के दे देगा। ठीक है, तो लेकिन इस चीज़ की ना नौबत नहीं आती कि हमने यहाँ मेन क्लास में बैठ के ऐसे एक्सेस करवाना है। ठीक है, इसकी सर ये इम्प्लीमेंटेशन हम ओवरराइडिंग। देखेंगे, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जब हम करेंगे तो आपके जो है ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो std1 से हम जो है पेरेंट क्लास का अगर लाना चाह रहे हैं फंक्शन कॉल तो हम किस तरह से करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, सर हम टेस्ट और जावा के अंदर चिल्ड्रन क्लास का कोई भी मेथड डिस्प्ले करा सकते हैं लेकिन पेरेंट क्लास का नहीं करवा सकते। उसकी पेरेंट का नहीं, उसकी पेरेंट का सेम नेम वाला नहीं करा सकते। अगर पेरेंट में कोई वेरिएबल है, फील्ड है, फंक्शन है, वो तो करवा सकते हैं, लेकिन जो नेम के साथ कोलैप्स कर रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं हम आप एक्सेस करवा सकते डायरेक्टली ऐसे, जैसे वो शो वाला था जैसा ना सर। जैसे वो शो था।
ठीक है। सर ये ओवरराइडिंग बता दे जरा एक दफा, फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में दोबारा से करेंगे वो, वैसे मैं बता देता हूँ फिर। फंक्शन ओवरराइडिंग ये होती है कि सेम सिग्नेचर है, ये देख पब्लिक वॉइड शो रिटर्न टाइप सेम है, नेम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है यहाँ पे भी और पर्सन में भी, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइड करके। जैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देते हैं, पहले से इस तरह का कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ था, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर लिखा और उसके अंदर अपने से खुद से बॉडी लिखने लग गए, रोल नंबर हमने बीच में लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट की प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिख दी, तो हमने क्या किया, पहले से एग्जिस्टिंग फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अब जब भी कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, वो ये वाला कॉल होगा हमारा। सर ठीक है इसका ना? मतलब है कि स्टूडेंट के अंदर हमने पेरेंट का जो फंक्शन था उसको ओवरराइड किया, हाँ जी, आप ये कह लें। क्योंकि सर पेरेंट का पहले कॉल होता है ना। नहीं, ये हम और पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करेंगे ना, साथ आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ओवर राइडिंग का, ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ ही पढ़ाया जाता है। मैंने वैसे आपको टेस्ट दे दिया इसका, क्योंकि मैं आपको ये सुपर के कीवर्ड का बताना चाह रहा था। ठीक है, ओवर राइडिंग जो है इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म के इन बिटवीन ही आती है। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्दर जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो अभी तक मैंने आपको बता दिया, वो आप नोट डाउन कर लें और इसी को आपने इम्प्लीमेंट करना है। एक लास्ट चीज़ रह गई कि अगर हम चाहते हैं कि कोई क्लास एक्सटेंड ना हो सके, फॉर एग्जांपल ये पर्सन की क्लास थी, मैं चाहता हूँ कि ये क्लास को कोई भी और क्लास एक्सटेंड ना कर सके। ठीक है, तो क्योंकि अब अभी तो ये क्लास है, इसे कोई भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ फाइनल का कीवर्ड लगाएंगे क्लास से पहले। ठीक है, जैसे ही देखें मैंने इस कीवर्ड को लगा के सेव किया, तो टेस्ट टीचर की क्लास में भी एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो एरर क्या है, द टाइप टीचर कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास पर्सन। ठीक हो गया, और स्टूडेंट की क्लास में भी एरर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये वो बताना चाह रहा है कि इस क्लास को हम एक्सटेंड कर नहीं सकते। तो अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं करवाना चाहते, तो उसके साथ फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं। सी शार्प में चले जाए तो वहाँ पे आप सील्ड का कीवर्ड लगा देते हैं, जो सील्ड क्लास हो जाती है उसको फिर फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आप किसी क्लास को फर्दर इनहेरिट नहीं करवाना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि जावा लैंग्वेज में हम फाइनल का कीवर्ड यूज़ करते थे क्लास के साथ, और सी शार्प में हम सील्ड का कीवर्ड। सी शार्प तो अगर आप सीखेंगे तो फिर आपको वहाँ पे भी पता लग ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सटेंड करते हैं, टाइप्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने हम पढ़ी। अब ये देखें, ये एरर आ गया क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले लिखा होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन, मैनेजर इज अ पर्सन। तो वो जो भी सेम कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो हमने पर्सन की सेपरेट क्लास बना ली, इसका कंस्ट्रक्टर सुपर करके कॉल कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट में हमने इसकी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर ली, कोड में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर जो भी आपको कन्फ्यूजन हुई वो हम नेक्स्ट क्लास से पहले 10 मिनट जो है क्वेश्चन पे करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल के नेक्स्ट वीक के फर्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। सर ठीक ये है, रिलेशनशिप एसोसिएशन में आते हैं। ये इनहेरिटेंस है, एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। यहीं से अगर मैं बनाना ठीक। चाहूँ हैज़ अ रिलेशनशिप, मैं एक क्लास बनाता हूँ डिपार्टमेंट की। अब डिपार्टमेंट हैज़ स्टूडेंट, डिपार्टमेंट हैज़ टीचर्स। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट की जो क्लास बनाऊंगा उसमें मैं एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की लोकेशन। उसके बाद मैं बनाऊंगा डिपार्टमेंट में लिस्ट, अरे लिस्ट बनाऊंगा टीचर्स डाटा टाइप की, अरे लिस्ट बनाऊंगा स्टूडेंट्स डाटा टाइप की। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, टीचर क्लास के ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना रहा हूँ और स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट बनाऊँ या जस्ट एक एंटिटी बना लूँ, ठीक है, वैसे तो लिस्ट ही वहाँ पे जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, ये वो डिपार्टमेंट स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान में एसोसिएशन हो जाएगी, और टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान में भी एसोसिएशन हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट और टीचर का आपस में कोई लिंक नहीं हुआ। ठीक हो गया, तो हैज़ ओके अ सर। रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है एसोसिएशन। तो वही है ना, एक सिनेरियो है, उसको आप एक्सटेंड कर देते हैं। एक सिनेरियो के अंदर हो सकता है आपको एसोसिएशन भी मिल जाए, इनहेरिटेंस भी मिल जाए, जैसे करंट सिनेरियो है। ठीक है, डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट हैज़ टीचर्स, स्टूडेंट और टीचर का हमने निकाल दिया पर्सन, ये इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी आ गया इसके अंदर ही। ओके सर। ठीक है,
तो सर वेट जी सर ये जुम्मे वाले दिन 2:30 पे क्लास काइंडली स्टार्ट किया करें। चलें ठीक है। नेक्स्ट वीक से ना, मैंने भी इस दफ़ा यही कहना था कि मैं हर टाइम इन्फॉर्म करता हूँ कि क्लास जो है 2:15 स्टार्ट होगी या 2:20 पे। तो आज कह दूंगा आपको कि नेक्स्ट वीक से 2:15 पे या 2:20 पे क्लास स्टार्ट होगी। 2:30 आप जुम्मा 2:30 पढ़ के फ्री होते हो? जी सर। चलें नेक्स्ट वीक से हम क्लास 2:30 करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर सर लैब अभी की जो आउटलाइन प्रैक्टिस के लिए आप जी लैब की आउटलाइन शेयर करते हैं। चलें मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। और सर सर अभी जो आप ये टास्क प्रैक्टिस के लिए देंगे ये हमने सबमिट भी करवाना है? हाँ जी, ये ग्रेडेड टास्क होगा, ओके सर। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सर।